आप सभी को हेलो, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम with whatever you are comfortable. I, Medhavi Nigam, welcome you all to your own channel, Achievers Success Mantra. I hope you all are doing well by the grace of God. In our last session, we have discussed about online chat with a contact in your contact list, sending text chat messages instantly, general rules and etiquettes, chatting on various types of messengers, chatting on Gmail, and chatting on Yahoo. I hope you all are clear about each and every concept. Today, we will discuss about some other topics related to creating and publishing web pages, that is blogs. So the topics that we will cover will be blogs, types of blogs, advantages of blogs, disadvantages of blogs, creating a blog, creating account on blogger.com, creating account on wordpress.com, and using offline blog editors. In today's session, we are not going to discuss using offline blog editors because in your syllabus it is mentioned within this topic also and also as a different topic. So whatever we will discuss about offline blog editors, that we will discuss in our next session according to your syllabus as it is divided by CBSE. So the first topic that we will cover today are blogs. So can anybody tell me what are blogs? कि blogs क्या होते हैं? Well, an informational website that contains discrete entries posted by an individual, a small group or multiple persons are known as blogs. ऐसी informational websites वो होती हैं that give you some information about any topic, जो आपको किसी भी चीज के बारे में जानकारी दें. So these websites contain some entries जो कि किसी सिंगल पर्सन, एक छोटे से ग्रुप या मल्टीपल पर्सन्स के द्वारा पोस्ट की जाती हैं. You can also say that blog is a discussion style site. एक ये साइट होती है डिस्कशन करने के लिए जो कि नॉन टेक्निकल या टेक्निकल यूजर्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती है. फॉर व्हाट पर्पस? फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस, जिससे कि वो अपने खुद के पर्सनल वेब पेजेस बना सकें. हम ये भी कह सकते हैं दैट ब्लॉग्स आर सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी. आपने देखा होगा कि आपको ऑनलाइन पर्सनल डायरी जैसी वेबसाइट्स भी अवेलेबल होती हैं जहाँ पे आप अपनी खुद की डायरी बना सकते हैं, उसमें अपनी पर्सनल चीज़ें सेव करके रख सकते हैं. सेम वे ब्लॉग्स आर ऑल्सो सच काइंड ऑफ डायरीज और वेबसाइट्स एंड दे आर वेरी सिंपल टू यूज, और इन्हें यूज करना बहुत ही आसान होता है. नाउ यू विल आस्क दैट व्हाई दे आर यूज्ड, वो किस लिए यूज किए जाते हैं. सो दे आर यूज्ड टू पोस्ट और शेयर व्यूज ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ये इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो, एनी टॉपिक, आप उसके बारे में अपने व्यूज दूसरों के साथ शेयर कर सकें. The blog word has came from weblog. ये weblog वर्ड से डिराइव किया गया है और ब्लॉग से रिलेटेड 3 टर्म्स होती हैं एंड दैट 3 टर्म्स आर ब्लॉगर, ब्लॉगिंग एंड ब्लॉग पोस्ट. सो लेट्स डिस्कस व्हाट दीज 3 टर्म्स आर. ये 3 टर्म्स आखिर क्या होती हैं. ब्लॉगर वी कैन से इज अ पर्सन हु राइट्स द ब्लॉग. एक ब्लॉगर क्या होता है? वो पर्सन जो कि ब्लॉग को लिखता है, और वी कैन से ऑथर ऑफ द ब्लॉग. जैसे कोई पर्सन जब बुक लिखता है तो हम उसे कहते हैं कि दैट दिस पर्सन इज द ऑथर ऑफ दिस बुक. तो इसी तरीके से अगर कोई पर्सन ब्लॉग लिखता है, he is also known as the author of the blog, and in technical terms we name it as blogger. Then is blogging.
इट इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग, अपडेटिंग, पोस्टिंग एंड शेयरिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप ब्लॉग्स को लिखते हैं, अपडेट करते हैं, पोस्ट करते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं। देन ब्लॉग पोस्ट, अपडेट्स पुट ऑन द ब्लॉग, ब्लॉग के ऊपर जो भी ब्लॉगर के द्वारा अपडेट्स, नई इंफॉर्मेशन डाली जाती है, ऑल दोज पोस्ट आर नोन एज ब्लॉग पोस्ट। Then is types of blogs. We have many types of blogs, but here we are discussing only few as required by your syllabus. The first blog that we will discuss is your personal blog. So the personal blog is what? Most types of blogs contains or are known as personal blogs. Bloggers write about what interests them. जो bloggers होते हैं वो उसके बारे में लिखते हैं जिस चीज में उनका इंटरेस्ट होता है, like their hobbies, their beliefs, daily life, etc. And they attract the types of people that share the same interest. और ऐसे ब्लॉग में वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिनका सेम वही इंटरेस्ट होता है। यानी कि अगर मेरी हॉबी बैडमिंटन है और दूसरे की भी बैडमिंटन हॉबी है तो वो पर्सन मेरे ब्लॉग की तरफ अट्रैक्ट होगा। सेकेंड इज योर पर्सनल ब्रांड ब्लॉग। दिस ब्लॉग फोकसेस ऑन द ब्लॉगर एज द ब्रांड। ये जो ब्लॉग होता है ये ब्लॉगर पे एक ब्रांड के तौर पे फोकस करता है। इट्स ऑफन यूज्ड फॉर कोचिंग, कंसल्टिंग, गाइडेंस, पर्सनल डेवलपमेंट एटसेट्रा। ये ज़्यादातर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा, किसी गाइडर के द्वारा गाइडेंस देने के लिए या किसी पर्सन के द्वारा पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड इज योर कंपनी ब्लॉग। Many companies run blogs to let their customers and clients know what is going on in the company. बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपने ब्लॉग्स इसलिए रन करती हैं जिससे कि उनके कस्टमर्स और क्लाइंट्स को ये पता लग सके कि आखिर उनकी कंपनी में क्या चल रहा है, what new products they are manufacturing. अब if they are manufacturing new products तो उसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं उस प्रोडक्ट के, कब तक वो लॉन्च होगा मार्केट में, like such as new products coming up or progress being made in a project. Fourth is your artist blog. It focuses on any type of art that the artist creates, like paintings, drawings, photography, etc. ये ब्लॉग्स जो होते हैं वो ज़्यादातर एक आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई चीज़ों पर फोकस करते हैं। They often include galleries, shops where you can purchase or commission work. या ज़्यादातर अपने में शॉप्स या गैलरीज रखते हैं जहाँ से आप कोई चीज़ बाय कर सकते हैं या अगर कोई चीज़ आप किसी और को दिलवा रहे हैं तो उसमें अपना कमीशन सेट कर सकते हैं। फिफ्थ इज पर्सनल सर्विसेज ब्लॉग। दिस ब्लॉग discusses topics around the services that are offered. ये ब्लॉग उन सर्विसेज के बारे में होता है जो आपके आसपास से ही आपको ऑफर की जाती हैं। These are great for local services. ऐसे जो ब्लॉग्स होते हैं ये लोकल सर्विस के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। लोकल सर्विसेज सच एज बेबी सिटिंग, जंक रिमूवल, लॉन केयर एटसेट्रा। Then is your micro blog. In this blog, one can post very short comments that others can follow, such as Twitter. ऐसे ब्लॉग्स में पर्सन जो होते हैं बहुत छोटे कमेंट्स लिख सकते हैं जिन्हें कि दूसरे पर्सन फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि ट्विटर। इफ यू हैव अ अकाउंट ऑन ट्विटर यू मस्ट हैव सीन दैट यू कैन टाइप ओनली अ फ्यू वर्ड्स ओवर देयर, नॉट अ लार्ज मैसेज। आप बहुत बड़ा मैसेज उसमें नहीं लिख सकते। The entries become a running commentary about one's life and interest. और इसमें जो एंट्रीज होती हैं एक पर्सन के वो क्या बन जाती है, रनिंग कमेंट्री बन जाती है उसकी अपनी लाइफ और इंटरेस्ट से रिलेट होके। Then is your news blog. This blog contains factual stories about news maintained by journalists.
ये अपने में कुछ फैक्चुअल स्टोरीज रखती हैं जो कि न्यूज़ जर्नलिस्ट के द्वारा मेंटेन की जाती हैं। विजिटर्स कैन ऐड देयर ओन ओपिनियंस एज वेल, और इन ब्लॉग्स पे कोई भी विजिटर अगर विजिट करता है तो अपने खुद की राय, अपने खुद के व्यूज भी यहाँ पर शेयर कर सकता है। गेस्ट ब्लॉग, द कंटेंट फॉर दीज ब्लॉग्स written by guest writers who are typically experts in the field. इन ब्लॉग्स में जो कंटेंट लिखा जाता है वो गेस्ट राइटर्स के द्वारा लिखा जाता है, एंड गेस्ट राइटर्स आर द पर्सन्स हु आर वेरी एक्सपर्ट इन देयर पर्टिकुलर फील्ड। अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। This leaves the blog owner free to manage and promote the blog. इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लॉग का ओनर होता है वो बहुत ही फ्री हो जाता है और अपने जो ब्लॉग्स होते हैं उनको वो आगे प्रमोट कर सकता है, while providing content that might even be beyond the blog owner's expertise. या इसमें यानी कि ऐसा कंटेंट भी कई बार होता है जो ब्लॉग ओनर को खुद ही नहीं समझ में आता क्योंकि वो उसके एक्सपर्टाइज के अंदर नहीं होता। And last is your professional blog. They are engaged in generating revenue. ये ज़्यादातर मनी कमाने के हिसाब से, मनी अर्न करने के हिसाब से बनाए जाते हैं। There all the steps are directed towards monetization. इनके जो भी स्टेप्स होते हैं, जो भी कुछ इस ब्लॉग में करते हैं, वो सब मोनेटाइजेशन के लिए, इनकम के लिए करते हैं। So this all we discussed about blogs and the types of blogs. The next thing that we should discuss about it are the advantages and disadvantages. Why so? Because everything that is there, that technology has provided you, has its some advantages and disadvantages. So firstly we will discuss the advantages. The first one is creating a blog is very easy and quick to set up. एक ब्लॉग को बनाना बहुत आसान होता है और आसानी से आप उसे सेटअप कर सकते हैं, मेंटेन मतलब यानी कि डिज़ाइन कर सकते हैं। सेकेंड, इट एनेबल्स यू टू राइट डाउन योर ओन थॉट्स। ये आपको अपनी खुद की थॉट्स, अपने खुद के विचार किसी भी चीज़ के बारे में लिखने में आपको मदद करता है, यानी कि जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो आप उसके बारे में अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। थर्ड, इजी एंड क्विक टू अपडेट और ऐड न्यू पोस्ट। आप अपनी पुरानी पोस्ट को अपडेट कर सकते हैं और नई पोस्ट ऐड कर सकते हैं। A good way of meeting new friends that are interested in the same topics as you. It is a good way, ये बहुत अच्छा तरीका है नए दोस्त बनाने का, नए दोस्तों से मिलना, उन दोस्तों से जो आपके जैसे इंटरेस्ट रखते हो। फिफ्थ, have potential to help an organization to develop stronger relationships and brand loyalty. ये एक ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है स्ट्रॉन्गर, मजबूत रिश्ते बनाने में और अपनी ब्रांड की लॉयल्टी को अपने कस्टमर्स पर बनाने के लिए। सिक्स, पीपल कैन राइट कमेंट्स ऑन योर ब्लॉग। लोग आपके ब्लॉग पर अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। सेवन, कैन रीड एनीबडीज ब्लॉग, और आप किसी का भी ब्लॉग पढ़ सकते हैं। देन कम टू डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉग्स। अब हम डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज व्हाटएवर यू पब्लिश। आप जो भी कुछ पब्लिश करते हैं, चाहे वो सही है या गलत है, वो हर किसी के लिए अवेलेबल होता है, यानी कि एवरी पर्सन कैन रीड इट। सेकेंड, पर्सनल ब्लॉग्स में बी बायस्ड और कंटेन इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। पर्सनल ब्लॉग्स जो होते हैं वो बायस्ड हो सकते हैं और इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। बायस्ड और इनएक्यूरेट से मतलब है यहाँ पे कि कई बार होता है हम किसी चीज़ से एग्री नहीं करते लेकिन दूसरा पर्सन उस चीज़ से एग्री कर सकता है, तो हम जो उसमें अपने व्यूज रख रहे हैं वो दूसरे के हिसाब से बायस्ड और इनएक्यूरेट हो सकते हैं। थर्ड, पीपल में लीव रूड और इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स। आपने जो ब्लॉग्स लिखे हैं, क्योंकि हर पर्सन को राइट है कि वो कमेंट दे सकता है, तो कई बार लोग कुछ रूड या कुछ गलत कमेंट्स दे सकते हैं, दैट मे हर्ट योर फीलिंग्स, जो आपकी फीलिंग्स को चोट पहुंचा सकते हैं। फोर्थ, ब्लॉग्स आर इजी टू स्टार्ट बट हार्ड टू मेंटेन। इनको शुरू करना तो बहुत आसान है
लेकिन इन्हें मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रोज एक ब्लॉग लिखना इट्स नॉट अ इजी टास्क। फिफ्थ, हैव टू सर्च फॉर नॉलेजेबल ब्लॉग्स। आपको नॉलेजेबल ब्लॉग्स के लिए सर्च करना पड़ता है, क्योंकि आज की डेट में मिलियंस ऑफ ब्लॉग्स आर देयर एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि हर ब्लॉग आपको कुछ अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करे। सो ये डिसएडवांटेज है कि आपको किसी भी चीज के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू फर्स्टली हैव टू सर्च फॉर इट। सिक्स, ब्लॉग्स कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। ब्लॉग्स जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। फाइंडिंग टाइम टू राइट रेगुलर अपडेट्स कैन बिकम अ चोर। रेगुलरली अपडेट्स लिखने के लिए समय निकालना बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ ब्लॉग। अभी हमने पढ़ा क्रिएटिंग अ ब्लॉग इज वेरी सिंपल, कि एक ब्लॉग बनाना बहुत ही आसान होता है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स आर देयर जो आपको ब्लॉग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं एंड many of them are providing it to you for free. So some popular blogs are your wordpress.com, blogger.com, blog.com, weebly.com, blogsome.com. We can create our blog account on any of these websites. इनमें से किसी भी वेबसाइट के ऊपर हम अपना ब्लॉग अकाउंट बना सकते हैं एंड आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट राइटिंग अवर ब्लॉग। उसके बाद हम अपने ब्लॉग लिखना शुरू कर सकते हैं। द थिंग दैट यू मस्ट नो, blogger.com इज अ गूगल सर्विस। blogger.com एक गूगल सर्विस है जो कि आप अपने खुद के ब्लॉग्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री में विद अ जीमेल अकाउंट। यानी कि इसके लिए आपके पास सिर्फ एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए एंड यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन ब्लॉग्स। क्रिएटिंग अकाउंट ऑन www.blogger.com। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ लिया कि ब्लॉग्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें blogger.com पे अपना खुद का अकाउंट बनाना हो, ब्लॉग अकाउंट, हाउ वी विल डू इट। फॉर दैट what you have to do, you need a web browser and then you have to open this website over there. So let's move on to our web browser and here you type the address of blogger.com. So it is loading up your website. ये आपकी वेबसाइट को लोड कर रहा है। Now it is loaded. Okay, so you are seeing here options, create your blog and sign in. So first of all you have to do what? You have to sign in the account. So click on sign in. As you click on it, it is directing you to your account. Select your account from here and then enter the password. Press enter. Now it is processing it. Now what you have to do? Choose a name for your blog. आपको अपने blog के लिए name choose करना है, यानी कि आपको title देना है। So what title you can write? जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट हो आप वो टाइटल दे सकते हैं। ओके, सो आई एम राइटिंग creative minds and after writing it click on next. Okay, now it is asking choose a URL for your blog. अपने blog के लिए एक URL choose करिए। Okay, why? Because this web address will help the people to find your blog online. ये आपके blog को मदद करेगा फाइंड करने में, कि लोग आपके ब्लॉग को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो जो आपने टाइटल दिया आप उसी नाम से इसका एड्रेस भी बना सकते हैं। सो क्रिएटिव माइंड्स मैंने लिख दिया है, बट इट इज शोइंग दैट सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। ये ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल नहीं है। सो आप क्रिएटिव माइंड्स लिख के ऑफ द वर्ल्ड कर दीजिए। ओके,
So it is showing this blog address is available, ये available है. After that click on next. Confirm your display name, कि आप अपने रीडर्स को क्या शो करना चाहते हैं, कि कौन से नेम से आप अपने आप को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं. So you can write creators and click on finish. As you click on finish, it starts processing. Okay, and it has created your blog now. इसने आपका ब्लॉग क्रिएट कर दिया. तो देखिए आपने टाइटल दिया था क्रिएटिव माइंड्स, तो क्रिएटिव माइंड से आपका ब्लॉग बन चुका है. एंड it is showing you over here that what things are there. Okay, and from here you have the new post option, stats, comments, earnings, pages, layout, theme. So if you want to change the theme of your blog, you can select any theme from here. यहाँ से आप कोई भी theme choose कर सकते हैं. That totally depends on you what kind of theme you want to select. Okay, and after that click on apply. So it is showing new theme applied successfully. तो आपकी theme जो है वो applied हो चुकी है. So there are many more themes. Whatever you like that you can choose. आप उसे choose कर सकते हैं. After that, if you want to create the blog, you have to click on new post. New post पे आप click करिए. This page opened. You start writing over here. Hello everyone. Welcome to Creative Minds. इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं. और जो भी आप कंटेंट डालना चाहते हैं इसमें वो कंटेंट आप डालिए. आप यहाँ से इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं कि HTML व्यू में करना है या कैसे करना है. उसको अनडू रीडू कर सकते हैं. उसका फॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, whatever you want, you can just insert things from here. If you want to insert some special characters, you can insert some special characters from here. तो देखिए आपके पास वो स्पेशल कैरेक्टर भी इंसर्ट हो गए हैं यहाँ पे. If you want to preview your post, click on preview on your right hand side and like this you will be able to see your post. इस तरीके से आप अपनी पोस्ट देख सकते हैं, right? And when you are ready to publish it, click on publish over here. आप इसको यहाँ से publish कर दीजिए, right? So when you click on publish, you can see it is asking you this will publish this post to your blog. ये आपके blog पे आपकी post को publish कर देगा. So you can confirm it. Okay. So now your one post has been published. आपकी एक post क्या होगी, publish हो चुकी है. Now you will ask कि मैम अगर हमसे post करते समय कुछ गलती हो जाए या हम अपनी पुरानी पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं या उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, so what we have to do for that? For that you have the option of creating, editing, deleting blog posts. The first one is you are creating a new post. अगर आपको new post बनानी है, that I had shown you that how you have to do it. Okay. Now the thing is editing and deleting a post. That is the main thing. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार जो भी चीज़ पोस्ट करें that is totally accurate, वो बिल्कुल सही हो. Some mistakes can be there. So that there you will get the option of editing and deleting. For that, what you have to do, over here you are getting the option post. आपको यहाँ पे post का option मिल रहा है. Click on this. जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी पोस्ट शो हो जाएंगी. जैसे ही आपके पास पोस्ट शो होंगी, ठीक है, आफ्टर दैट यू सी द ऑप्शंस ओवर हेयर, रिवर्ट टू ड्राफ्ट, ऐड लेबल्स टू दिस पोस्ट, डिलीट दिस पोस्ट, व्यू दिस पोस्ट. ओके, सो डिलीट का ऑप्शन है तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं. एंड इफ यू वांट टू एडिट इट, जस्ट ओपन अप एंड
start writing over here. ओके यहाँ से आप इसको करिए एंड क्लिक ऑन अपडेट. सो इट इज शोइंग चेंजेस सेव. तो जब आप बैक जाएंगे अपने पोस्ट पे तो आपके पास हाउ आई जो आपने ऐड किया था, एडिटिंग की थी, वो शो हो गया. एंड व्हेन यू हैव टू डिलीट इट, directly you are seeing the option over here, delete the post. So click on it. It is asking you, do you want the post to be deleted? It means this will remove this post from your blog. ये एक्शन क्या करेगा, आपके पोस्ट को रिमूव कर देगा आपके ब्लॉग में से, और इसे कोई भी व्यू नहीं कर सकता. और एडिटेड वंस डिलीटेड, और ना आप इसे एडिट कर सकते हैं अगर ये एक बार डिलीट हो गया. सो क्लिक ऑन डिलीट पोस्ट. जैसे ही आपने किया, it deleted your post and it is showing there are no posts. अब कोई भी पोस्ट नहीं रह गई है. So like this you can just create your blog over here. आप अपना blog यहाँ पे बना सकते हैं. Next is creating account on wordpress.com. अब मैंने आपको ये तो सिखा दिया कि blogger.com पे आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं. अब हम देखते हैं wordpress.com पे हम अपना ब्लॉग अकाउंट कैसे बना सकते हैं. Some of the steps will be same and some will be different. So firstly you have to write the address of the website over here. Now it is loading our website. Your website is loaded. So click on login on your right hand side on the top. Okay, and now you have to choose continue with Google or continue with Apple, or particular email address you want to add. So I am continuing with Google. It means I will sign in through my Gmail account, enter my password, it is taking time to process it. Okay, so it is showing me creating your account, कि वो अभी मेरा अकाउंट बना रहा है यहाँ पे. The site is still in process to create my account. So now it has created my account. यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, मेरा अकाउंट बना दिया है, right? So you have the option over here on the top right. It means create a new post. Click on it. Okay, it is showing you you don't have any WordPress sites yet. आपकी कोई भी WordPress की साइट अभी तक नहीं है. Okay, so would you like to start one? क्या आप अपनी एक बनाना चाहेंगे? So click on create site. क्योंकि WordPress पे आपकी साइट होना ज़रूरी है. WordPress पे क्या, वैसे भी आपकी साइट्स होना ज़रूरी है. I am using the same name over here, Creative Minds. Okay, now I have to choose a domain. मुझे अपने लिए एक डोमेन चूज करना है. So I am choosing creativeminds.net.in, and then it is showing you the cost also. अगर आप cost pay करना चाहते हैं तो I am choosing a free one, that is free for me. Then click on continue. Now choose a design for your website. Many designs are over here, so any design you can choose. I am choosing this one. Here it has given you the options of the font कि आप कौन सा font choose करना चाहते हैं. Then click on continue. Then it is providing you which features will you need. आपको क्या क्या features चाहिए होंगे, तो आप यहाँ से features को choose कर सकते हैं. Custom domains, image storage, video storage. Then continue. Okay, and then it is asking select a plan.
तो हमें तो फ्री में बनाना है। ओके, so I am going back. So it is asking you to add a coupon and more plan subscription is saying showing you the price. तो अगर आप नहीं करना चाहते wordpress.com पे क्योंकि पेमेंट करना है और आपको फ्री में अपनी एक वेबसाइट चलानी है, तो blogger.com इज द बेस्ट साइट फॉर इट। लेकिन अगर आप wordpress.com पे कंटिन्यू करते हैं और आगे ऐसे ही करना चाहते हैं तो सेम वही प्रोसेस रहेगा जैसा कि blogger.com पे था। आप वही चीज़ें कर सकते हैं, अपना पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, एडिट और डिलीट कर सकते हैं, बट इट विल बी डन व्हेन यू पे द अमाउंट, जब आप अपना अमाउंट पे कर देंगे। एज आई डोंट वांट टू पे द अमाउंट, मैं यहाँ पे अमाउंट पे नहीं करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नहीं बनाना चाहती हूँ। सो आई जस्ट बैक आउट, मैं यहाँ से बैकआउट करूँगी। तो इट इज शोइंग अस योर साइट हैज बीन क्रिएटेड। आई हैवंट डन एनी काइंड ऑफ पेमेंट राइट नाउ, मैंने इसमें कोई पेमेंट नहीं किया है। इसमें प्लान भी वो मुझे फ्री का दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं और ये इसने शो कर दिया कि एक प्राइवेट अकाउंट है, तो आप यहाँ से वो कर चीज़ें कर सकते हैं। लॉन्च योर साइट, आपकी साइट तभी लॉन्च होगी जब आप आगे पेमेंट करेंगे। साइट का मेन्यू भी आपका तभी क्रिएट होगा, आपका होम पेज भी तब अपडेट होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ओवर हियर। ओके, so it is asking you to create a site menu. I am skipping it now. If I edit my home page, if you are noticing one thing, आपका जो वेब प्रेस साइट का जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, क्योंकि वो सबसे पहले आपको पेमेंट के ऑप्शन के लिए लेके चला जाता है। ओके, नाउ आई एम कंप्लीटिंग माय सेटअप। मैं अपना सेटअप कंप्लीट कर रही हूँ। यू आर ऑलमोस्ट देयर। ओके, तो कहीं ना कहीं से ये घूम फिर के आपको बार बार पेमेंट के लिए ही बोल रहा है। सो इट इज़ बेस्ट फॉर यू दैट यू जस्ट यूज़ blogger.com। आप blogger.com को यूज़ करिए, दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। In front of you, I am trying again and again to write a post, but it is asking me to do payment first. After that, it will let me do anything. तो चलिए इस साइट से अब बाहर ही आ जाते हैं। I hope you are able to understand how you have to create your account on a blogging website and how you can start writing your post. And you must be aware now that which website interface is more friendly to you, blogger.com or wordpress.com। wordpress.com ज़्यादातर आपको पेमेंट के लिए बोलता है, that you have to pay money, after that you can start your website, but blogger.com is totally free for you। So if you are interested in writing blogs, go for blogger.com। if you really like this video, just like, share and comment this video। if you are an old subscriber of our channel, just stay connected with us and ask your friends also to get connected with us। अपने friends को भी बताइए इस channel के बारे में। if you are a new visitor, subscribe our channel and press the bell icon so that you keep getting the notifications of upcoming topics। other topics we will discuss in our next session। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।